हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर स्टोरी। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, लुकिंग एट मिरर। उस स्टोरी को हम अच्छे से अच्छे तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश करिए। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है। तो हम हमारा जो जर्नी है उस पर एक्सपर्ट होने के लिए उस स्टोरीज को अच्छे से अच्छे तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चले पहले एक बार उसको लाउडली पढ़ लेते हैं ताकि रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जो फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। टाइटल जो है लुकिंग एट मिरर। वन डे all the employees reached the office and they saw a big advice on the door on which it was written, yesterday the person who has been hindering your growth in this company passed away. We invite you to join the funeral in the room that has been prepared in the gym. In the beginning, they all got sad for the death of one of their colleagues, but after a while, they started getting curious to know who was that man who hindered the growth of his colleagues and the company itself. The excitement in the gym was such that security agents were ordered to control the crowd within the room. The more people reached the coffin, the more the excitement heated up. Everyone thought, who is this guy who was hindering my progress? Well, at least he died. One by one, the thrilled employees got closer to the coffin, and when they looked inside it, they suddenly became speechless. They stood nearby the coffin, shocked and in silence, as if someone had touched the deepest part of their soul. There was a mirror inside the coffin. Everyone who looked inside it could see himself. There was also a sign next to the mirror that said, there is only one person who is capable to set limits to your growth. It is you. You are the only person who can revolutionize your life. You are the only person who can influence your happiness, your realization, and your success. You are the only person who can help yourself. Your life does not change when your boss changes, when your friends change, when your partner changes, when your company changes. Your life changes when you change. When you go beyond your limiting beliefs, when you realize that you are the only one responsible for your life. The most important relationship you can have is the one you have with yourself. Moral: the world is like a mirror. It gives back to anyone the reflection of the thoughts in which one has strongly believed. The world and your reality are like mirrors lying in a coffin, which show to any individual the depth of his divine capability to imagine and create his happiness and his success. It is the way you face life that makes the difference. तो ये हमारा रीडिंग हो गया। हमने कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की। तो फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम उसको ज़्यादा से अच्छे तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। सो पहले से हम स्टार्ट करेंगे उसको समझाना। तो बने रहिए हमारे साथ, हम उसको इवन हर एक वर्ड को भी हम समझाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइटल है लुकिंग एट मिरर। लुकिंग एट मतलब देखना, मिरर होता है दर्पण, आईना जो होता है उस पर देखना, आईने की तरफ देखना। उसको लेके स्टोरी है हमारा। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम उसको एक्सप्लेन करें। फर्स्ट लाइन जो हमारा है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। वन डे, एक दिन, ऑल द एम्प्लॉइज रिच्ड द ऑफिस एंड दे सॉ अ बिग एडवाइस ऑन द डोर ऑन विच इट वॉज रिटन। फर्स्ट यहाँ तक। एक दिन ऑल द एम्प्लॉइज, सब एम्प्लॉइज, एक कंपनी के जितने सारे एम्प्लॉइज होते हैं, जितने सारे कर्मचारी होते हैं, वो रिच्ड, पहुंचे, द ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंचे। रिच मतलब पहुंचना,
REACH रिच मतलब पहुंचना, ED लगाए, रिच पहुंचे, द ऑफिस अपने ऑफिस पहुंचे, एंड दे सॉ एंड उन लोगों ने देखा, सी होता है देखना, SAW सॉ मतलब देखे, उन लोगों ने देखे, क्या देखे उन लोगों ने, ए बिग एडवाइस एक बड़ा एडवाइस दिया हुआ है, ऑन द डोर दरवाजा पे, ऑन विच इट वॉज रिटन जिस एडवाइस पे लिखा हुआ है, इट वॉज रिटन मतलब यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, एडवाइस पे क्या लिखा था, येस्टरडे मतलब काल, गुजरा हुआ काल, जो कल चला गया उस काल, द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग, द पर्सन वो व्यक्ति, हु हैज बीन हिंडरिंग जो आपको बाधा दे रहा था, जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहा था, योर ग्रोथ आपको आगे बढ़ने में, वो व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ने में बाधा दे रहा था, इन दिस कंपनी इस कंपनी में, पास्ट अवे मर गया, PASSED पास्ट अवे, पास्ट अवे मतलब मर जाना, पास्ट अवे मतलब मर गया, मर गया, ये समझ लो, बहुत अच्छा फ्रेज है। अब क्या हो गया, वी इनवाइट यू हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको निमंत्रित करते हैं, वो एम्प्लॉइज देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ एडवाइस, हम आपको निमंत्रित करते हैं, यू वी इनवाइट यू टू जॉइन द फ्यूनरल, कि आप ज्वाइन करें, आप शिरकत करें किस पे, उस फ्यूनरल पे जो अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, इन द रूम उस रूम पे दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द जिम, जो जिम के रूम में प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया, प्रिपेयर्ड होता है तैयार करना, तो तैयार किया गया है जिम के रूम में, उस रूम पे, उस पे आपको इनविटेशन है कि आप आके ज्वाइन करें फ्यूनरल को, अंतिम संस्कार को। इन द बिगिनिंग तो पहले पहले ये खबर सुन के, इन द बिगिनिंग होता है शुरुआत में, दे ऑल गॉट सेड, दे ऑल मतलब सब एम्प्लॉई, जितने सारे एम्प्लॉइज थे, सब कर्मचारी क्या हो गए, गॉट सैड मतलब दुखी हो गए, फॉर द डेथ ऑफ वन ऑफ देयर कलीग्स, कलीग्स होता है अपने साथी, फॉर द डेथ होता है मर जाने की खबर सुनकर, वन ऑफ देयर कलीग्स अपने कलीग्स में से, अपने साथियों में से एक साथी मरने की खबर सुनकर बहुत दुख हो गया उनको, बट आफ्टर ए वाइल, बट क्या हो गया, आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस टू नो, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस वो उत्तेजित होना शुरू हो गए थे, टू नो जानने के लिए उनके अंदर एक क्यूरियसनेस शुरू हो गया था, उत्तेजित होना शुरू हो जा रहे थे। हु वॉज दैट मैन, कि वो आदमी कौन था, हु वॉज दैट मैन हु हिंडर्ड जो रुकावट बन रहा था, द ग्रोथ ऑफ हिज कॉलिग्स अपने साथियों को आगे बढ़ने में जो रुकावट बन रहा था, जो बाधा दे रहा था, एंड द कंपनी इटसेल्फ एंड उस कंपनी को आगे बढ़ने में कौन वो आदमी है जो रास्ते में रुकावट बन रहा था, बाधा दे रहा था, उसको जानने के लिए वो लोग क्या हो रहे थे, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस, बहुत उत्तेजित हो रहे थे। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हो गया, और एक बार देख लेते हैं स्पीड से। वन डे एक दिन ऑल द एम्प्लॉइज रीच द ऑफिस एंड दे सॉ ए बिग एडवाइस ऑन द डोर ऑन विच इट वॉज रिटन, सब एम्प्लॉई सब कर्मचारी रिच द ऑफिस पहुंचे, एंड दे सॉ ए बिग एडवाइस उन्होंने एक बड़ा एडवाइस देखा, ऑन द डोर पे, ऑन विच जिस पे लिखा हुआ है, ऑन विच इट वाज रिटन जिस पे लिखा हुआ है, येस्टरडे कल, द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग योर ग्रोथ इन दिस कंपनी, उस कंपनी में जो व्यक्ति आपके आगे जाने में, आपके इंप्रूवमेंट में बाधा बन रहा था, पास्ट अवे वह मर गया। अब यहां से, वी इनवाइट यू टू ज्वाइन द फ्यूनरल इन द रूम, हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप आके ज्वाइन करें उसके अंतिम संस्कार में, इन द रूम उस रूम पे, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द जिम जो जिम में प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया है। इन द बिगिनिंग शुरुआत में, दे ऑल गॉट सैड फॉर द डेथ ऑफ वन ऑफ देयर कलीग्स, अपने एक साथी के मौत के बारे में खबर सुनकर वो लोग दुखी हो गए पहले पहले, बट आफ्टर ए वाइल, बट कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस टू नो हु वाज दैट पर्सन, वो जानने के लिए उत्तेजित हो रहे थे कि वह कौन लोग था, हु हिंडर्ड होता है बाधा बनना, जो बाधा बन रहे थे, द ग्रोथ ऑफ हिज कलीग्स एंड द कंपनी इटसेल्फ, उस कंपनी को आगे जाने में एंड अपने साथियों को आगे जाने में कौन वो लोग है, कौन वो आदमी है जो बाधा बन रहा था। तो अब आएगा हमारा सेकंड पैराग्राफ में, उसको अच्छे तरह देखने की कोशिश करते हैं। द एक्साइटमेंट इन द जिम, फर्स्ट लाइन से, द एक्साइटमेंट इन द जिम, एक्साइटमेंट उत्तेजित होना, इन द जिम वाज सच, इतना सारा एक्साइटमेंट था उनके अंदर, मतलब इतना उत्तेजित हो रहे थे वो लोग कि उसका परिमाण ये लगा रहा है कि द सिक्योरिटी एजेंट्स वेर ऑर्डर्ड, सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया गया, सिक्योरिटी एजेंट्स को ऑर्डर दिया गया टू कंट्रोल द क्राउड, कि आप क्या करें,
तुम लोग उस क्राउड को, क्राउड होता है भीड़, लोगों का भीड़, क्राउड को कंट्रोल करो विद इन द रूम, रूम के अंदर, क्योंकि इतना उत्तेजित हो रहे थे एम्प्लॉइज उसको जानने के लिए, तो इतना हल्ला मल्ला मतलब मच गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एजेंट्स को ऑर्डर दिया गया। द मोर पीपल रीच द कॉफिन, उस रूम के अंदर कॉफिन रखा हुआ था मुर्दे आदमी का। द मोर पीपल, जितने ज्यादा लोग रीच्ड पहुंचे द कॉफिन, कॉफिन तक, द मोर द एक्साइटमेंट हीटेड अप, उनका एक्साइटमेंट, उनका जो उत्तेजना है वो हीटेड अप, हीट होता है गर्म होना, हीटेड अप मतलब गर्म हो रहा था, बढ़ रहा था, इतना उत्तेजित हो रहे थे जानने के लिए। एवरीवन थॉट, हर एक लोग सोच रहे थे, एवरीवन थॉट सोच रहे थे, हु इज दिस गाय, अरे कौन है वो आदमी, हु वॉज हिंडरिंग माई प्रोग्रेस, जो मेरे प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस होता है मेरे उन्नति को, जो मेरे उन्नति को रोक रहा था, हिंडरिंग रोक रहा था। तो एवरीवन, हर लोग क्या हो रहे थे, ये सोच रहे थे, देखने के लिए, जानने के लिए उत्तेजित हो रहे थे। हु इज दिस मैन, हु इज दिस गाय, कौन वो आदमी है, हु वॉज हिंडरिंग माई प्रोग्रेस, जो मेरे प्रोग्रेस को, मेरे उन्नति को रोक रहा था। वेल एटलीस्ट ही डाइड, अच्छा हुआ कि वह मर गया, अच्छा हुआ कि वह मर गया। अब देखने के लिए वो उत्तेजित हो रहे थे। वन बाय वन द थ्रिल्ड एम्प्लॉइज, वन बाय वन, एक एक करके द थ्रिल्ड एम्प्लॉइज, थ्रिल्ड होता है क्या, थ्रिल्ड होता है इतना खुशी, मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, उसको थ्रिल्ड कहते हैं। मतलब उत्तेजित, जितने सारा उत्तेजित एम्प्लॉइज थे, गॉट क्लोजर, वो लोग क्लोज हुए, मतलब पास गए, द कॉफिन, टू द कॉफिन, कॉफिन के पास गए। ज्यादा उत्तेजना लेके वो लोग क्या हुए, कॉफिन के पास गए। एंड व्हेन दे लुक्ड इनसाइड इट, जब उन लोगों ने लुक्ड देखा, इनसाइड इट, उसके अंदर, दे सडनली बिकेम स्पीचलेस, वो अचानक से बिकेम स्पीचलेस, स्पीचलेस हो गए, कि उनका बोलना बंद हो गया, बोलती बंद हो गया, जबान में कोई बात नहीं आ रहा है। वन बाय वन क्या हो गया, यहां से वन बाय वन द थ्रिल्ड एम्प्लॉइज गॉट क्लोजर टू द कॉफिन, जो उत्तेजित एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, जब वो क्लोजर हुए, पास गए कॉफिन के। एंड व्हेन दे लुक्ड इनसाइड, जब उन्होंने देखा, इनसाइड द कॉफिन, इनसाइड इट और इनसाइड द कॉफिन, कॉफिन के अंदर, दे सडनली, वो अचानक से बिकेम स्पीचलेस, स्तब्ध हो गए। क्यों? दे स्टूड नियर बाय द कॉफिन, एंड वो लोग खड़े हो गए, स्टूड मतलब स्टैंड का पस्ट है, टू स्टूड, खड़े हो गए, नियर बाय पास में, द कॉफिन, कॉफिन के पास में खड़े हो गए। शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए, शॉक्ड क्या हो जाना, हैरान हो जाना। एंड इन साइलेंस, एंड चुपचाप खड़े हो गए, चुपचाप से खड़े हो गए कॉफिन के पास। एज इफ समवन, एज इफ ऐसा लगा कि समवन हैड टच्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ देयर सोल, डीपेस्ट पार्ट ऑफ देयर सोल, ऐसा लगा उनको कि किसी ने उनके डीपेस्ट होता है बहुत गहराई से, गहराई, पार्ट ऑफ देयर सोल, सोल होता है आत्मा, उनके आत्मा के, उनके दिल के गहराई के पार्ट को छू लिया किसी ने, टच होता है छूना। जब उन्होंने कॉफिन को देखा, कॉफिन को देखने के बाद वो लोग शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए, स्पीचलेस हो गए, साइलेंस होके पास खड़े हो गए। एंड ऐसा लगा कि समवन, कि किसी ने उनके अंदर के, उनके गहराई के, दिल के, मतलब इतना अंदर के पार्ट को छू लिया। क्यों? क्योंकि देयर वॉज ए मिरर इनसाइड द कॉफिन, उस कॉफिन जो था, कॉफिन के अंदर, कॉफिन तो होता है जिसके अंदर मुर्दा रखा हुआ होता है, तो उन्होंने मुर्दे को देखने के लिए कॉफिन को देखा, तो कॉफिन के अंदर क्या था, देयर वॉज ए मिरर, एक आईना था, एक दर्पण था, इनसाइड द कॉफिन, कॉफिन के अंदर। एवरीवन, हर एक लोग, हु लुक्ड इनसाइड, जिन्होंने भी अंदर देखा, कॉफिन के अंदर जाके देखा, इट कुड सी हिमसेल्फ, वो अपने आप को देख रहे थे, वो अपने आप को देख रहे थे। क्योंकि उनका मतलब यही सोच था कि जो लोग हमारे प्रोग्रेस में, हमारे उन्नति में बाधा दे रहा था, वो लोग मर गया एंड कॉफिन पे रखा हुआ है, तो हम देखते हैं वो कौन बंदा था जो कंपनी के भी एंड मेरे प्रोग्रेस में भी बाधा बन रहा था। उसको देखने के लिए कॉफिन की तरफ जब देखा उन लोगों ने, तो कॉफिन के अंदर एक मिरर था जिसपे खुद की परछाई दिख रहा था, तो वो देख के शॉक्ड हो गए। अब क्या हुआ, देयर वॉज ऑल्सो ए साइन, मिरर के पास, उस आईने के पास, ऑल्सो एक साइन, एक चिन्ह भी था, नेक्स्ट टू द मिरर, नेक्स्ट टू द मिरर मतलब मिरर के पास, मिरर के पास, आईने के पास, जिस चिन्ह पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देयर इज ओनली वन पर्सन, यहाँ एक ही व्यक्ति है, ओनली वन पर्सन, हु इज कैपेबल टू सेट लिमिट्स टू योर ग्रोथ, जो कैपेबल है, जो हिम्मत रखता है टू लिमिट्स, सीमित करने का, लिमिट होता है सीमित करने का, टू योर ग्रोथ,
तुम्हारा जो ग्रोथ है, तुम्हारा जो ग्रोथ होता है आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाने की लिमिट सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। एंड वो आदमी कौन है? इट इज़ यू, इट इज़ यू। वो तुम ही हो, तुम ही हो जो अपने आगे बढ़ने की लिमिट रख सकता है, लिमिट बना सकता है। वो एक ही आदमी है। वो कौन है? वो तुम हो। ये लिखा हुआ है कफिन में। यू आर द ओनली पर्सन, आप बता रहा है कि यू आर द ओनली पर्सन, तुम खुद, यू आर द ओनली पर्सन, तुम ही वो आदमी हो, तुम ही वो आदमी हो हु कैन रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ, हु कैन रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ। रिवोल्यूशनाइज होता है एक क्रांति लेना, एक बदलाव लेना, अचानक से एक क्रांति ले आना योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में। तो यू आर द ओनली पर्सन, तुम ही वही व्यक्ति हो जो तुम्हारे जीवन में रिवोल्यूशनाइज ले सकते हो, क्रांति ला सकते हो। यू आर द ओनली पर्सन, एंड तुम ही वही व्यक्ति हो हु कैन इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित कर सकते हो योर हैप्पीनेस, अपने खुशियां को बढ़ा सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो योर रियलाइजेशन एंड योर सक्सेस, तुम्हारे जो रियलाइजेशन है, तुम्हारे जो सफलता है, उसको तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तुम ही वो व्यक्ति हो, दूसरा कोई नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन, एंड तुम ही वो व्यक्ति हो हु कैन हेल्प योर सेल्फ, जो अपने आप को, जो खुद को मदद कर सकते हो। तुम ही वो व्यक्ति हो, किसी दूसरे तुम्हारे जीवन में आके मदद नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा तुम्हारे जीवन के ग्रोथ को रोक भी नहीं सकता। ये तुम ही हो। ये सब लिखा हुआ था मिरर के पास, कफिन के अंदर। योर लाइफ डज नॉट चेंज, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन डज नॉट चेंज, नहीं बदलेगा। व्हेन योर बॉस चेंजेस, जब तुम्हारा कंपनी का जो बॉस अगर चेंज हो जाए, बस बदल जाए, तो तुम्हारा लाइफ नहीं चेंज होगा। एंड उसके बाद क्या है, तो हम मिल गए यहाँ, तुम्हारा बस अगर चेंज हो जाए तो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन नहीं चेंज होगा। व्हेन योर फ्रेंड्स चेंज, जब तुम्हारा दोस्त चेंज हो जाए तो तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं होगा। व्हेन योर पार्टनर चेंज, जब तुम्हारा पार्टनर भी चेंज हो जाए तब भी तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं होगा। व्हेन योर कंपनी चेंज, अगर तुम्हारा कंपनी भी चेंज हो जाए तब भी तुम्हारा जीवन चेंज नहीं होगा। तो कैसे होगा? योर लाइफ चेंजेस, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा। व्हेन यू चेंज, जब तुम बदलोगे, तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम खुद बदलोगे। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीफ्स, जब तुम जाओगे, गो बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है अपने बाउंड्री के बाहर जाना, गो बियॉन्ड ज़्यादातर जाना, गो बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीफ्स, तुम्हारे जो सीमित बिलीफ्स है, जो विश्वास है। लिमिटिंग बिलीफ, लिमिट होता है सीमित, बिलीफ होता है विश्वास। तुम्हारे खुद का जो सीमित विश्वास है उसके बाहर जब तुम जाओगे तब जाके तुम्हारा लाइफ बदलेगा। व्हेन यू रियलाइज, जब तुम रियलाइज कर पाओगे दैट यू आर द ओनली वन, जब तुम समझ पाओगे, रियलाइज समझ पाओगे दैट के यू आर द ओनली वन, तुम खुद वही हो, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, अपने लाइफ के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। जब तुम ये समझ पाओगे कि तुम अपने लाइफ के खुद जिम्मेदार हो, तब जाके तुम्हारा लाइफ बदलेगा। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है भाई, उसको देख लो। इसके बाद क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज द वन यू हैव विद योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, यू कैन हैव, तुम्हारा हो सकता है, इज द वन यू हैव विद योर सेल्फ, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ है, उसी के साथ तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध हो सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मॉरल हमको क्या दिया गया? मॉरल हमको यही दिया गया, द वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर, वो वर्ल्ड जो है, जो विश्व है, लाइक ए मिरर, वही आईने की, वही दर्पण की तरफ है। लाइक ए मिरर, वही मिरर के जैसा ही है। इट गिव्स बैक, वो तुमको लौटा देता है, वापस वही करता है, टू एनीवन, किसी को भी वो वापस वही करता है। तो गिव्स बैक होता है वापस वही करता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स इन विच वन हैज स्ट्रांगली बिलीव्ड, द रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब, वापस जो देना, रिफ्लेक्ट करना, ऑफ द थॉट्स, आपने चिंता का, इन विच वन है स्ट्रांगली बिलीव, स्ट्रांगली मजबूती से जो विश्वास करता है। तो क्या हो गया? लाइफ क्या है? वर्ल्ड जो विश्व है वो मिरर के जैसा ही है, आईने के जैसा ही है। इट गिव्स बैक टू एनीवन, वो वापस वही करता है किसी को भी। द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स, अपने चिंता का रिफ्लेक्शन को, इन विच वन है स्ट्रांगली बिलीव, जिसपे आप ज्यादातर मजबूती से बिलीव करते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का आपको लाइफ गिव्स बैक करता है। मतलब आपका बिलीव अगर है कि किसी दूसरे के लिए मेरा ग्रोथ रुक गया है, तो आप रुके रहेंगे। अगर आप यही रियलाइज कर पाए कि नहीं, मैं ही हूँ जो अपने आप को बदल सकता हूँ, तो आप बदलेंगे। तो आपका बिलीफ पे ही मतलब रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद है हमारा द वर्ल्ड एंड योर रियलिटी, जो विश्व है एंड योर रियलिटी, आपका जो रियलिटी है वो क्या है? आर लाइक मिरर्स, वो भी अपने
मिरर के जैसे ही है, अपने आईने की जैसे। रियलिटी होता है सच्चाई, जो सच्चाई होता है उसको, तो विश्व एंड तुम्हारा रियलिटी, तुम्हारा जो सच्चाई है वो क्या है, लाइक मिरर्स, वही आईने की तरह है, लाइंग इन ए कफिन, जो उस कफिन पे लेटाया हुआ था, उस कफिन पे लेटाया हुआ था। विच शो, जो दिखा रहा था, टू एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी आदमी को दिखा रहा था, द डेथ ऑफ हिज डिवाइन कैपेबिलिटी। डिवाइन होता है ऐश्वरिक, ऐश्वरिक गॉड का दिया हुआ जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो क्षमता का गॉड का दिया हुआ जो कैपेबिलिटी है, वो कैसे मर गया वो दिखा रहा था। टू इमेजिन, ये कल्पना करने के लिए, एंड क्रिएट, ये बनाने के लिए, हिज हैप्पीनेस, अपने खुशी को, एंड हिज सक्सेस, अपने सफलता को फिर क्रिएट करने के लिए वो दिखा रहा था। इट इज़ द वे, यही रास्ता है, यू फेस, आप सामना करते हो जीवन का, लाइफ का, दैट मेक्स द डिफरेंस, जो लाइफ में एक बदलाव लाता है, एक अंतर लाता है। तो हम मॉरल को और एक बार देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर, वर्ल्ड क्या है, हमारा मिरर के जैसा है ना, कि जैसा इट गिव्स बैक टू एनी वन द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स इन विच वन हैज स्ट्रांगली बिलीव्ड, वही रिफ्लेक्ट करता है, वही वापस देता है जिस पे कोई स्ट्रांगली बिलीव करता है। जो चिंता आप स्ट्रांगली, मजबूती से पकड़ लेते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। उसके बाद है द वर्ल्ड एंड योर रियलिटी आर लाइक मिरर्स, ये विश्व एंड आपका सच्चाई जो है वही मिरर के जैसा है, लाइंग इन ए कॉफिन, उस कॉफिन के अंदर जो आईना रखा हुआ था उसके जैसा ही है। विच शो टू एनी इंडिविजुअल द डेथ ऑफ हिज डिवाइन कैपेबिलिटी, जो दिखा रहा था किसी भी आदमी को उसके जो डिवाइन कैपेबिलिटी है, वैश्विक जो क्षमता है, वो कैसा मर गया। एंड टू इमेजिन, एंड इमेजिन, कल्पना करने के लिए वो दिखाया, एंड क्रिएट हिज हैप्पीनेस एंड हिज सक्सेस, एंड अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करने में, सक्सेस को, सक्सेस जो है, सफलता है, उसको क्रिएट करने के लिए दिखाया। इट इज़ द वे यू फेस, इट इज़ द वे, एंड यही रास्ता है फेस लाइफ, जो लाइफ का सामना आप कर सकते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस, जो एक अंतर ला सकता है, डिफरेंस। तो ये हो गया कंप्लीट, हमने कर ली, जितना हो सके हमने समझाने की कोशिश की। ज़्यादातर अगर हमने और टाइम लगाते तो ज़्यादा लंबा हो जाता है ये वीडियो, तो हमने कोशिश की कि उसको छोटे से छोटे वीडियो में मतलब कवर करने की। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके, एंड उस स्टोरी में जो मॉरल वैल्यूज़ दिया गया है उसको फॉलो करके चले, क्योंकि लाइफ में वही होता है, हम खुद समझ लेते हैं कि कोई दूसरा हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, जहां हम खुद अपने रास्ते का रुकावट बन के बैठे हुए होते हैं। तो अपने आप को रियलाइज़ करो एंड समझो कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में एंड रुकावट करने में, दोनों में आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसको फॉलो करके आप आगे चलिए, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखिए, एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।